Yes, students, please go through the question and start answering. Yeah, students have started answering saying A as an option. Okay, good. Yeah, Sanjay is A, Vansh A, Satvik A. So maximum all the students are giving A as the answer. Yeah, please do not copy paste the answer. Please go through it, solve it, and then give the answer. So we are getting maximum responses. Answer number A, option number A. Yes, sir. Okay. Uh, Before going to in depth of the topic, how many people uh, how many people answer it? A. Sir, approximately Okay, I believe 16 students giving the answer A. Okay. Uh, Now this concept, this program is basically based on your understanding of access specifiers. So if you go through Python or in any programming language, we have certain access specifier that is called public, private and protected. So जिन्होंने भी आंसर ए दिया है, that is the correct answer is A, 19 and 0. Now I explain you किस तरीके से 19 और 0 आया. ठीक है. Now, as you know, whenever we create an object, like here, our class name is class. If you see, we have C in a capital and we create an object obj1. So once the obj1 is created, obj1 is created. Once this is created, its constructor is fired and the constructor in it having two variable, one is self, other is var2. So var2 contains -1. In var2, it is assigned a -1 value. So after this, the statement is self dot underscore underscore var2 is equals to var2. So var2 contains -1. It means self dot underscore underscore var2 contains -1 value. After that, interpreter jumps back to obj1 dot method 1. In method 1, we have two statement, statement 1, statement 2. In statement 1, we have self dot underscore underscore var2 plus 1. So as previous statement in constructor, self dot underscore underscore var2 contains the value -1. That -1 plus 1 is equals to, hello, sorry. My voice is not audible. मेरा भी डिस्कनेक्ट हुआ. Yeah, is sir voice audible? Kindly respond in the chat. Hello. Sir, my voice is audible to you. Yes, it is audible now. Please continue. हाँ. So now self dot underscore underscore var2 contains the value -1. उसपे -1 है, उसपे हमने +1 ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. इसका मतलब है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर var2 में जो न्यू वैल्यू है दैट इज 0. इन सेकंड स्टेटमेंट वी हैव क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर var1. अब ये क्लास डॉट क्या है बेसिकली, अगर आप देखें तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनसाइड अ क्लास, एक वेरिएबल हमने वहां पे डिक्लेयर करा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर var1 इक्वल्स टू 20. ये एक मेंबर क्लास का मेंबर वेरिएबल है ये. ठीक है. और ये मेंबर वेरिएबल को कॉल करने का तरीका आप देखिए, पहले हमने क्लास नेम लिखा है, देन डॉट, देन अंडरस्कोर var1 लिखा, -1. तो क्लास डॉट अंडरस्कोर var1 में जो वैल्यू है वो 20 है. 20 - 1 दैट इज 19. तो जो हमारे पास नई वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 19 आ गई. यानी 0 और 19 इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू है.
फिर हमने किसको कॉल करा, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेटमेंट रन होता है ये वाला, दैट इज obj1.method2। तो इसका मतलब हमारा इंटरप्रेटर यहां से यहां जंप कर गया रनिंग के लिए। तो पहले क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है, प्रिंट क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर var1। var1 में क्या वैल्यू है, var1 में जो वैल्यू है वो दैट इज 19, यानी कि इसने 19 प्रिंट करा। और var2 में कौन सी वैल्यू है, सिमिलरली 0। तो 19 और 0 इस तरीके से प्रिंट हुआ यहाँ पे। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट इन दिस Yes, पर्टिकुलर कोड? students, kindly respond. If anyone is having any query till now, type in the chat. No, no doubt, sir. No, Our main no. motive is to clear your concept. If you have any doubt regarding access specifier, I can explain you in much more deeper manner. No, sir. Students are saying no. Please, you can continue. Okay, so next, I believe in the next problem is very important, and you all attempted in very well manner. So there is next question. The students go through this question and try to answer. Yeah, Ramansh is saying A, Ayush C, Vaibhav C, Raman Sangal is saying A, and other 5 to 6 students are saying C as an answer. Okay, good. Shivani C. Solve it carefully, check the answers, and then give it. Please do not copy So paste the how many answers. students are giving answer A, Only one student gave answer A. and rest of the students are giving answer C, attribute error? Yes, sir. Okay. Before going to solve this problem, I teach you one concept, or maybe you forget that concept. Python is an interpreting language. Interpreter work करता है इसके अंदर, है ना? And everything in Python is an object. ये हम लोगों ने पढ़ रखा है. Everything in Python is an object. यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछे. Yes. Any पाइथन doubt में in हर this? एक चीज ऑब्जेक्ट होता है. इस बात पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछे. Yes, students, any doubt in this? No. Yeah, what about other students? Kindly respond quick so that we can proceed further. No. Sir, please Okay. continue. तो फर्स्ट पॉइंट इज पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हम कोई भी चीज अगर डिक्लेयर कर रहे हैं या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है. क्लास ए जब आपने डिक्लेयर करा यहां से लेके यहां तक, अगर हम बात करें यहां से लेके स्टेटमेंट 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेटमेंट जब कंप्लीट होते ही इंटरप्रेटर में एंटर आप की दबाएंगे. जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे, है ना, तो क्या बना यहाँ पे, ये क्लास बन गई. यानी उस क्लास का क्या बन गया हमारे पास, उस क्लास का हमारे पास क्या बन गया, उस क्लास का हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट. क्या बना हमारे पास, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, है ना? डू यू एग्री दिस? आप लोग एग्री है इस बात से कि नहीं एग्री है? अगर Yes, आप इस बात से एग्री है students. फिर हम आगे चलते हैं. Yes. ओके. अब अगर ये ऑब्जेक्ट Yes. बन गया और पाइथन जो है इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर वर्क करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर बनाया, इंटरप्रेटर ने इन लाइन ऑफ कोड्स को रन करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया. जब इंटरप्रेटर ने इन लाइन ऑफ कोड को रीड करना स्टार्ट करा तो सबसे पहले क्या इनकाउंटर करा, फॉर एक्स इन रेंज 3, फॉर एक्स इन रेंज 3. तो सबसे पहले इसने क्या करा, एक्स की वैल्यू को पहले 0 किया होगा, फिर 1 किया होगा, फिर 2 किया होगा, क्योंकि हमें पता है कि फॉर लूप जो होता है वो कहां तक रन करता है, n-1 तक रन करता है. यानी कि x की जो वैल्यू है उसने फाइनली x की वैल्यू क्या कर दिया होगा, 2 कर दिया होगा. x की वैल्यू 2 कर दिया होगा. यहाँ पे x की वैल्यू 2 करने के बाद जब ये यहाँ पे इनिट, उसके नीचे देखा इसने कोड क्या रन करना है, कोड तो पास है, कोई दिक्कत नहीं है. इनिट में भी क्या है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है. ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किसका, ए का, है ना? और फिर लिखा प्रिंट ए डॉट एक्स. अब एक बात बताएं आप, जब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ए का, तो इस ए को एक्स की नॉलेज होगी, है ना?
ए को एक्स की नॉलेज होगी, ए के पास एक्स की नॉलेज क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया आपको, 2 प्रिंट कर दिया। फिर कैपिटल ए डॉट एक्स है, कैपिटल ए डॉट एक्स क्या है, क्लास नेम डॉट एक्स, क्या क्लास को एक्स की नॉलेज है, यस क्लास को भी एक्स की नॉलेज है, तो क्या प्रिंट करा उसने, 2 प्रिंट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे ये कोड में 2,2 प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको समझने बहुत जरूरी थे। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, पाइथन क्या है, इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, उस इंटरप्रेटिंग की वजह से ही उसने इंटरप्रेट करते करते फॉर लूप रन करा और एक्स को एक वैल्यू असाइन कर दी गई जो कि फाइनल वैल्यू होगी जब वो फॉर लूप रन हो रहा होगा। इसलिए जिन्होंने भी आंसर ए दिया दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, कि आंसर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन 2,2। Yes, एनी students. डाउट टिल दिस स्टेप? Any doubt to anyone? Those who have answered C, is your query got solved? Have you come to know how we got answer A? Yes, kindly respond. If Sir, you have please doubt, repeat. please you ask to Yeah, me. sir, Yeshi is saying, please repeat. ओके। बेटा यहाँ पे ना दो बातें आपको ध्यान रखनी है, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पे हमने जो क्लास ए भी बना रहे हैं, जो क्लास ए का एग्जिस्टेंस होगा वो भी कहीं ना कहीं इनसाइड मेमोरी में ऑब्जेक्ट की तरीके से ही हुआ होगा। आप जब देखें यहाँ पे इनिट यहाँ पे लिखा, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले जो कोड हमने लिखा हुआ है ये एक सिंपल फॉर लूप है जो कि n-1 तक रन होता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है बेसिक पाइथन के अंदर, या आपने पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यानी कि ये लूप जो है वो पहले x की वैल्यू 0 होगी, ये अंदर आएगा इसके अंदर, देखा यहाँ पास लिखा है, ये वापस रिटर्न ऊपर चला जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर ये इनसाइड आएगा, पास देगा, फिर ऊपर आया, फिर इसकी वैल्यू 2 होगी, और जैसे ही 3 एनकाउंटर होगा यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। तो यानी कि एक्स की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास अभी इसके अंदर जो हुई एज ए इंटरप्रेटर जो इसने वर्क करा, वो इसने 2 असाइन कर दिया, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। जैसे ही वहां पे कंप्लीट हुआ, आपने यहाँ पे इस क्लास को यहाँ पे क्लोज करा, जैसे ही आपने, कोई क्लास हमारी यहाँ तक क्या बनी है ना, जैसे ही क्लोज करके आप यहाँ पे पहुंचे, आपने एंटर दबाया, क्योंकि आपको पता है पाइथन में जो इंडेंटेशन होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, है ना, ऐसे देखते हैं ना। और उसके अंदर जितना भी है ये जो स्पेस के बाद है वो सारे आपके क्या है, इस क्लास के अंदर के कोड है। तो जैसे ही ये क्लास के अंदर के कोड कंप्लीट हुए और आपने यहाँ पे एंटर दबाया, एंटर दबाते ही ये कोड जो है जिसका ऑब्जेक्ट बनना है ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हुआ, और ये जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ इस कोड के अंदर, तो पहला जो फॉर लूप जो रन हुआ उसमें एक्स की फाइनल वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है। फिर हम इस स्टेप पर आए, यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए, मतलब अब ये क्या बनाया यहाँ पे आपने, ऑब्जेक्ट बनाया एक ए, है ना। ऑब्जेक्ट को तो कंप्लीट नॉलेज होनी ही होनी इसके बारे में। तो ए डॉट एक्स जब आपने फायर करा तो एक्स की जो फाइनल वैल्यू 2 थी वो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर कैपिटल ए डॉट एक्स फायर हुआ, कैपिटल ए कौन है, क्लास का नाम है, क्लास भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आपको उस दिन आईसीपीओ रूल भी हमने पढ़ाया था, तो पहले इंस्टांस में चेक करता है फिर क्लास में चेक करता है। यहाँ पे क्लास नेम डॉट एक्स है, और यस क्लास को तो एक्स की नॉलेज है क्योंकि यहाँ पे एक्स के अंदर यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, तो यहाँ पे भी इसको 2 की नॉलेज थी तो इसने 2 प्रिंट कर दिया, तो यानी यहाँ पे भी 2 प्रिंट हुआ और यहाँ पे भी 2 प्रिंट हो गया। एनी डाउट टिल दिस स्टेप प्लीज? हेलो? Yeshi, Yash, any doubt? Have your query got cleared? Yeah, what about the other students? Any doubt to anyone in this concept? Kindly respond. Clear? No, no doubt. No. Okay, sir. Please continue. सो यू हैव नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है। और हो सकता है कई लोगों ने सुना हो सकता है कई लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है उसके अंदर जो आपसे डिस्कस करना है, एंड यू फील वेरी मच बेटर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। Okay, students, kindly go through this question and try to solve it. सर वे गेटिंग एनी रिस्पॉन्स?
No, sir, not it. Yeah, Ayush gave 17 as the answer. Vaibhav, Okay. yeah, A. Your students good. A. I believe, B correct response. do you need some more time? We give you 10 sec. One against, we give them time to solve this question. Yes, yes, sir. Please take 10 more seconds and try to solve because I got only few responses. Just 10 out of 79. It's not good. Please kindly, everyone are requested to participate and give the answer. Your participation is compulsory, which will tell us that how much you have understood and a confidence builds to you. Kindly respond. Yes, others kindly respond. Responses आने start हो गए मेरे ख्याल से. So only the last response was there. Now there is no fresh response. Okay. कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, है ना? मैं वो कंफ्यूजन आपके हटाता हूँ. डोंट वरी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत जरूरी है. ठीक है. और मैं उसको एक बार स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग उसको नेक्स्ट टाइम आप जरूर इसको सॉल्व कर पाए. जिन्होंने कर लिया है डेफिनेटली यस, द आंसर इज 17. एंड मैं उन सबको बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने 17 आंसर दिया. और जो नहीं दे पाए हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार. देखिए यहाँ पे बेसिकली एक क्लास बना है, क्लास फ्रूट के नाम से क्लास है. ठीक है. उसमें एक फंक्शन हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पे हमने. उस अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फ्रूट 50, यानी कि यहाँ पे कॉल हुआ और प्राइस में जो वैल्यू है वो 50 चला गया, असाइन हो गया. फिर ऑब्जेक्ट डॉट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 14, यहाँ पे वैल्यू क्या है 14 है. ऑब्जेक्ट डॉट बैग इज इक्वल्स टू 2. पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये सही है कि गलत है? ऐसे असाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम लोग पाइथन में? Yes, kindly respond, beta. Can we do in this दिस way? दिस Can इज we assign the ट्रू. value? Yes. Vaibhav is saying yes. ओके. Yes. नाउ व्हाट टर्म कंफ्यूज यू, दैट इज डिक्ट. अगर आपको पता हो तो डिक्ट इज लाइक अ डिक्शनरी, है ना? यानी की वैल्यूज होती है वहां पे. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, बेसिकली आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड स्कोप. द वर्ड स्कोप, पाइथ जावा में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कोप पढ़ते हैं. स्कोप बताता है कि कहां से कहां तक कोई चीज चलेगा, है ना? हम बताते हैं उसके कहां से कहां तक उसका रेंज होगा, कहां से कहां तक वो वैल्यू कंटेन कर सकता है. या फिर आप एक टर्म पढ़ते थे नेम स्पेस. नेम स्पेस में क्या होता है, नेम स्पेस के अंदर आप जितने भी टर्म्स, जितनी भी क्लासेस होती है वो सारी क्लासेस एक जगह पे डालते हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक डिक्ट फंक्शन है जो क्या कंटेन करता है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टांसेस हैं जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिक्ट ये बताता है कि कौन कौन से इंस्टांसेस हैं जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है. डिक्ट क्या बताता है, कौन कौन से इंस्टांसेस हैं जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ओबीजे नाम से है. और जो डिक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, अब इसके स्कोप को बताने के लिए इसके कौन कौन से इंस्टांसेस यहाँ पे, एक इंस्टांस हमारे पास है प्राइस, एक इंस्टांस है हमारे पास क्वांटिटी, एक इंस्टांस हमारे पास है बैग्स. ये 3 इंस्टांसेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, यानी इस ऑब्जेक्ट के स्कोप के अंदर ये 3 इंस्टांसेस हैं जिसपे ये वर्क कर रहा है. ठीक है. तो डिक्ट उन इंस्टांसेस को एक पैकेज के अंदर या एक बॉक्स के अंदर कंटेन करके रख लेता है. अब जब मैंने यहां पे लिखा कि मुझे ये पता लगाना है कि यहां पर कितने मेरे पास इंस्टांसेस हैं, नंबर ऑफ इंस्टांसेस पता लगाने के लिए मैंने लेन फंक्शन का यूज करा. तो मेरे पास इस बॉक्स के अंदर अभी 3 इंस्टांसेस हैं. वन इज प्राइस, सेकेंड इज क्वांटिटी, थर्ड इज बैग्स. तो जब इसने काउंट करा तो इसके लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. और उसको इसने किसमें ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट क्वांटिटी के अंदर. ऑब्जेक्ट डॉट क्वांटिटी के अंदर ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, 14 है. तो 14 प्लस 3 दैट इज 17. तो आउटकम इज 17. Any student having any kind of doubt, please ask. Hey, students, is your query got solved? Have you able to understand how we got 17 as the output?
because we got only few responses, so we're expecting at least the what we say response now, that it has been cleared or to need to repeat or any doubt. Please kindly respond so that you can proceed. Repeat once. Yeah, Vishal Kumar is saying repeat once. Vansh is saying repeat. Sir, please kindly repeat once Okay, okay, so again. that Okay, it will fine. be clear. You have to understand what is actually a dict is doing. Dict is actually dict with respect to particular object. Whenever we create any object in any program, dict will contain all the instances, or you can say collection of all the instances. Here we declare one instance, that is obj.quantity, other is obj.bags, or when you call obj is equal to fruit 50, then the value that is 50 is given to price. It means obj.price. These are the three instances that are associated with obj. What dict is doing, dict is basically makes one box or a package where it collects all the instances. So we have three instances here: price, quantity, and bag. All these three are inside this box. Now what we write in the print statement at the end, that is len obj dot underscore underscore dict underscore underscore. You know that whenever something is written as underscore underscore dict underscore underscore, है ना, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं. तो डिक्ट इज इनबिल्ट फंक्शन जिसका काम ये है कि जितने भी इंस्टांसेस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है उन्हें कलेक्ट करके रखे. ठीक है, इसने कलेक्ट करके रख लिया इन तीनों को, किसको, प्राइस को, क्वांटिटी को और बैग्स को. फिर मैंने क्या करा, मैंने उसके आगे एक एलियन फंक्शन लगा दिया. अब एलियन फंक्शन क्या कर रहा है, एलियन फंक्शन जितने भी वहां पर हमारे पास इंस्टांसेस हैं उन सबको उन सबको काउंट कर रहा है, उनके नंबर्स को. तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं. तो एलियन ने 3 रिटर्न किया यहाँ पे. वो 3 रिटर्न होके ओबीजे डॉट क्वांटिटी में ऐड हो गया. तो 14 प्लस 3 कितना हुआ, 17 हुआ, और इसने 17 प्रिंट कर दिया. एनी डाउट? Yes, Maurya, Vansh, Vishal, is your concept got clear now? Yes, Maurya. Vansh, kindly respond because you have told requested to repeat the concept. Kindly respond now. Okay. Yeah, I know Vansh that is this clear. concept is new to you. We generally don't do such kind of functions in normally, but because this PPT is more related to object and classes, so my main concern is whatever is related to object, that is very much clear to you. So instances are created here, and the number of instances that are created are contained inside a dict. So dict will contain the number of instances. Now len, what len is doing, it counts the number of instances and print it. So we have 3 instances and it will print 3. 3 plus obj dot quantity, that is 14. 14 plus 3 is 17. So 17 is the answer. So any doubt, or we proceed? Yes, students, kindly respond. Any doubt to anyone in this? Please type in the chat box so that we can proceed further to the next concept. Yeah, I need quick response. Yeah, please proceed. Yeah, I need few responses because only one gave the response. Yeah, Still, I proceed. request you, Yes. if you have stay when you learn by yourself and you get any doubt, please, you are most welcome to our WhatsApp number. You may give your doubts to my WhatsApp number. I will clarify it. I'm happy to clear your doubts. Okay, so we move to next PPT. Yes, sir. Please proceed. There, it's clear to everyone. So the explanation is here. There are multiple methods to create a class member. One of the method is creating variable within the instance object. They remain alive and part of the instance object till it in the memory, but they cannot be accessed in any other way. So next. Okay, students, kindly go through the question, try to solve it and give the answer. Please do not copy paste the answer as you did in the previous questions. You have solved it very good. Take some time, but give the proper response. I give you a hint. If you dry run it now, you will get the answer within 3 or 4 lines of code. It is very easy.
जस्ट ड्राई रन इट, जस्ट ड्राई रन इट। मैं लास्ट टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि ड्राई रन करना सीखो, ड्राई रन इट, यू विल गेट द आंसर। No responses yet from anyone. A. Vaibhav is saying A. Vansh A. Why I'm getting only few student responses every time? What about others? Total 86 students are present now, but I'm getting only few. Yeah, Vishaka, new. It's a new name, right? Rianshi, Vanshika. Yeah, please, very good. Yeah, Shreyans A. Swarnima A. Sir, maximum student. Yeah, someone Ramansh is saying D, and apart from him, everyone is saying A. रमन आंसर डी, Ramansh. डी फॉर Yeah. दिल्ली। Yes, Delhi. Yes, sorry, B. He has changed the answer as B. Raman saying B. ओके, बी फॉर Bombay. बॉम्बे हो। Yeah, yeah. And rest answers are A. ओके, मैं बहुत मतलब सरप्राइज हूं कि आप लोगों ने ड्राई रन करना अभी भी उतना अच्छे से नहीं सीखा है। मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे क्योंकि यस, रमन इज राइट। अब व्हाई द रमन इज राइट, अब मैं उस बात को डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। नाउ मैंने बोला था ड्राई रन करोगे तो आप 1 मिनट में पकड़ लोगे कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। देखो, पहले मैं गड़बड़ बताता हूँ, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा आपको प्रॉपरली, ठीक है। अब देखिए, आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया पहले D1, है ना, फिर D2 बनाया, ठीक है, फिर एक प्रिंट करा कैल्सी डॉट एड। अब ये कैल्सी कौन है? कैल्सी इज अ क्लास नेम, क्लास नेम डॉट एड, है ना। D1 D2 दो पैरामीटर। आप मुझे बताएं, पहली बात, क्या आप क्लास नेम डॉट एड कर सकते हैं ऐसे? यस और नो? Yes, kindly respond. Can we call the add method directly? The class name? Yeah, respond yes or no. इट इज वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से ITCS के बच्चे हैं सब, और आप लोग के लिए बहुत इजी है। कैल्सी डॉट No. एड कॉल होगा कि नहीं होगा? Yes or no. Please type yes or no. No one responded till now because I think the other option is don't know. That can be because no one responded till now. Yes, at least say yes, no, or don't know. मैंने बड़ा Okay, सिंपल यहाँ सा क्वेश्चन normal पूछा option आपसे, don't know. कैल्सी डॉट एड जो है, क्या ये फायर हो सकता है कि नहीं फायर हो सकता? No, Vansh is saying no. ओके, Yes, तो एक no. पॉइंट तो यही मिल गया आपको, है ना, One student ड्राई रन में। said, no, sir, first we create object. ओके गुड, अच्छा, चलो एरर तो पता चल गया आपको, लेकिन फिर भी आगे और बढ़ते हैं। सपोज ये D1 और D2, यहाँ से किसी बच्चे ने एक ये देखा नहीं ध्यान से और उसने बोला नहीं मैं तो आगे भी लेके चलूंगा, वो D1 D2 पे चला गया। तो यहाँ पे इसमें D1 आएगा और इसमें D2 आएगा, जैसे असाइनमेंट हमें पता चलता है। तो D1 यहाँ आया, D2 यहाँ आया, तो ये पैरामीटर क्या हो गया हमारे पास? अनडिफाइंड रह गया ना, तब भी एरर आएगा। तो ये कैसे हम इसे रेक्टिफाई करेंगे? इसको रेक्टिफाई करने का तरीका या तो ये, आप देखो, मैं अगर सपोज करो इसको ऐसे लिखता, कैल्सी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको फंसाते हैं टीचर, डॉट एड D1 कॉमा D2, ठीक है। अब बताए, अब ये रन होगा कि नहीं होगा, यस और नो? Yes, respond to this. Yes or no. क्या अब ये रन होगा? Yes, give a quick response. Yes or no. आप Yes, सबने पाइथन पढ़ा हुआ, मुझे पता है ये बात, आप yes, लोग बताएं। yes. अच्छा गुड, तो जितना भी यस बोला है गुड, ये रन होगा। यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या था, अगर आपको इस कोड को रन करना था तो आपके पास पहला ऑप्शन है, या तो आप ऑब्जेक्ट बनाए या फिर इस तरीके से इसे कॉल किया जाए, है ना, तभी हमारा कोड रन हो सकता है। अदरवाइज ये क्या देगा, हमें एरर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसने हमें यहाँ पे क्या दिया, एरर दिया, जो कि रमन ने आंसर दिया था मेरे ख्याल से। रमन ने एरर बोला था ना सर? Yes, Sir, sir. Yes, Raman. sir. Kindly, students, if you want to ask any question, kindly type in the chat and kindly unmute yourself.
Okay, you can whatever you want to communicate, you can type in the chat so that definitely we will do. Yes, Raman, you are saying something. Kindly type in the chat so that I can convey the message to sir. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो बताएं Ramansh. प्लीज. Okay, रमन. he's saying his name is Ramansh, not Raman. Okay, right, right. ओके Any रमन. query to anyone in this particular concept? How we got error as the answer? Is this concept clear to everyone? Kindly respond so that we can proceed. If anyone need the repetition, you can please type in the chat box. We will do for it. Yes. Any queries to anyone? Kindly respond. No query. I'm finding only few students which are continuously repeating. I need to randomly pick a student then. Niharika, new name. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Repeat. Maurya is saying to repeat. Any more repetitions? I think Maurya, please kindly repeat. Okay, I repeat the topic. These are the 3 line of code we have. In first line we create object d1. In second line we create object d2. In this third line we call a add function through class. So this is an error. You can't call an function through class. To call it we need an object, है ना. ऑब्जेक्ट डॉट ऐड होके कॉल होगा ना वो तो. ठीक है, पहला प्रॉब्लम तो ये था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लास डॉट कर रहे हैं हम लोग. सेकंड इशू क्या था कि जब आप यहाँ पे ऐड फंक्शन में पैरामीटर्स देखिए तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं. वन इज सेल्फ, अदर इज ए, थर्ड इज बी. अगर यहाँ से एक्सीडेंटली अगर ये रन भी हो जाता तो यहाँ पे D1 इसको असाइन हो जाता, D2 इसको असाइन हो जाता, लेकिन B में कुछ भी असाइन नहीं होता. तो B क्या रह जाता, एक अनडिफाइंड वेरिएबल रह जाता. तो ये भी क्या एक एरर होता. ठीक है, इसलिए कोड रन नहीं हुआ. अब अगर इस कोड को रन करना हो तो हम क्या करेंगे. इस कोड को रन करना हो तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि हम इसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो हम क्या करेंगे, कैल्सी क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हम इस ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. ठीक है, एक तरीका ये था, है ना. दूसरा मैंने एक शॉर्टकट सा आपको बना के दिखाया था कि कैल्सी ब्रैकेट लगाया डॉट ऐड d1 कॉमा d2. हमने ये करा. इससे भी क्या होगा, हमारा फंक्शन जो होगा वो रन हो जाएगा और काम करेगा. देखिए सेल्फ क्या करता है, सेल्फ बेसिकली ऑब्जेक्ट के इंस्टांस को लेकर चलता है ना. लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ तो क्लास है. तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है. कोई डाउट मौर्य जी? सर फैजल इज सेइंग सर सेल्फ तो हम पैरामीटर के लिए यूज करते हैं, तो बट वो सर D1 सेल्फ में क्यों जाएगा? हाँ, आप ये बात समझे कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं. देखिए सेल्फ जो होता है वो जो भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके इंस्टांस को रखता है अपने पास. ठीक है ना. मतलब जैसे मैंने अगर यहाँ पे इसको कॉल, जो मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है कैल्सी ब्रैकेट डॉट ऐड, तो इसका जो इसका इंस्टांस होगा वो सेल्फ में जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना. लेकिन मैंने यहाँ पे जो सेल्फ जो है यहाँ पे एक पैरामीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर रहे, आप इंस्टांस के थ्रू कॉल नहीं कर रहे, आप क्लास डॉट लिख रहे हैं. इसलिए वहां पे सेल्फ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना वहां पे. तो जब पैरामीटर जाते हैं तो असाइंड इस तरीके से होते हैं. D1 गया तो D1 उसको थोड़ी ना पता है, वो तो D1 को उठा के सेल्फ में असाइन कर देगा क्योंकि इंस्टांस गया नहीं. अगर यहाँ से इंस्टांस जाता, सपोज अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते, अगर ब्रैकेट लगाते और यहाँ से इंस्टांस जाता, तो जो कैल1 का जो इंस्टांस है, इंस्टांस यहाँ पर आता और D1 यहाँ चला जाता, D2 यहाँ चला जाता, तो हर पैरामीटर को वैल्यू असाइंड हो जाती. लेकिन यहाँ पे वैल्यू असाइंड नहीं हुई है. ठीक है ना, इसलिए वहां पे एरर जनरेट होगा. और कुछ? Yes, Maurya, is this clear? Okay. Is a request to every student that whenever you ask a query, try to type the question in English so that you will get habituated as if you are talking in English with us. Okay, so it improves your communication too. Okay, yeah. Sir, please continue. Okay. So एक और तरीका था उस बात को करने का जो हम लोगों ने अभी बात किया था कि क्लास के थ्रू कॉल कराने के लिए. उसका तरीका क्या है कि अगर हम एक डेकोरेटर बना दे @class मेथड,
एट द क्लास मेथड क्या है, एक डेकोरेटर है. व्हाट आर डेकोरेटर्स? डेकोरेटर्स एक काइंड ऑफ डायरेक्टिव होते हैं इंटरप्रेटर के लिए, जो ये बताता है कि ये फंक्शनैलिटीज को मॉडिफाई करना बताता है इंटरप्रेटर को, मैंने कुछ फंक्शनैलिटीज को मॉडिफाई कर दिया है. अगर मुझे कुछ फंक्शनैलिटीज को मॉडिफाई करना है तो मैं डेकोरेटर्स यूज करूंगा. तो जैसे एट द रेट क्लास मेथड, आप अगर देखें यहाँ पे, तो हम लोगों ने एक डेकोरेटर यूज कर रहे हैं एट द रेट क्लास मेथड. तो ये एक डेकोरेटर है, यहाँ पे भी हमने डेकोरेटर ले रखा है. लेकिन जब हम एट द रेट क्लास डेकोरेटर ले रहे हैं क्लास मेथड, तो यहाँ पे एक पैरामीटर, जैसे आपने अभी बताया था ना मुझे सेल्फ यूज करते हैं आप, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम CLS यूज करते हैं. तो इससे प्रीवियस कोड जो हमारा रन नहीं हो रहा था, है ना, ये वाला कोड रन नहीं हो रहा था ना, कैल्सी डॉट एड D1 कॉमा D1 कॉमा D2, वहां पे रन नहीं हो रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये रन हो जाएगा, कैल्सी डॉट एड कॉल हो जाएगा, और यहां से ये वैल्यूज इसको असाइन हो जाएंगी और ये हमें रिजल्ट देगा. यानी कि जिनका आंसर जिन्होंने 0 दिया था, ठीक है, वहां पे ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा. बट समझना क्या है कि अगर आपको क्लास मेथड बनाना है या क्लास के थ्रू कॉल करवाना है, तो आपको एक डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा, जिसका जिसको हम कैसे लिखते हैं, एट द रेट क्लास मेथड करके लिखते हैं. और जहां पे हमारे पास फंक्शन में एक हम पैरामीटर सेल्फ भेज रहे थे या सेल्फ था, वहां पे हमें उसकी जगह पे CLS यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम CLS यूज करेंगे तो अब क्या हुआ, कैल्सी डॉट एड D1 D2, तो कैल्सी का जो भी आइडेंटिफायर है, क्योंकि हमने बताया था कि क्लास भी क्या एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, तो जो भी उसका आइडेंटिफायर है वो CLS को रिप्लेस कर देगा. D1 कहाँ चला जाएगा, A में चला जाएगा. D2 कहाँ चला जाएगा, D2 चला जाएगा B में. और ये कोड हमारा अब रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो हम चाहे तो हम क्लास मेथड डिक्लेयर करके भी इससे प्रीवियस कोड को रन कर सकते थे. ठीक है ना, मतलब ये रेक्टिफिकेशन है. हो सकता है आपसे पेपर में इस तरीके से पूछा जाए, इस तरीके की कोड दे दे और पूछे इन हाउ मेनी वेज यू कैन रेक्टिफाई द एरर, और वो ऑप्शन में ही दे दे कि ये तरीके हैं आपके पास अवेलेबल. तो ये भी एक तरीका हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम चाहें तो डेकोरेटर क्रिएट करके भी हम काम कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट इस पॉइंट पे? Yes, any queries till now, kindly respond in the chat. Any queries to anyone? No, no. Yes, please, I need few responses. स्टूडेंट पार्टिसिपेट कीजिए. देखिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू पार्टिसिपेट देन ओनली आई केम टू नो कि आप तक मेरा कॉन्सेप्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा. आप जितना कम रिस्पॉन्स करेंगे उतना मुझे लगेगा कि शायद कम बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना. बट एट द एंड हर एक को इंटरव्यू में बैठना है. Yes, repeat, sir. Meenakshi is saying repeat. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर वन पॉइंट. And Yash व्हाट? is saying, please repeat, please explain decorator again. Okay. Decorators are special kind of keywords that are introduced in Python to direct interpreter. ये इंटरप्रेटर को डायरेक्ट करते हैं या बताते हैं कि भाई अगर मेरे को किसी ने डिक्लेयर करा है तो मेरे नीचे आने वाले फंक्शंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा. जैसे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है एट द रेट क्लास मेथड, ये एक डेकोरेटर है. जैसे ही इंटरप्रेटर एट द रेट क्लास मेथड पे आता है, उसके बाद वाला जो फंक्शन है, इंटरप्रेटर को पता है कि उसके बाद वाला जो फंक्शन है उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना किससे, क्लास के ऑब्जेक्ट से लेना देना है. यानी क्लास से लेना देना है. क्लास ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्लास से लेना देना है. क्लास से लेना देने का मतलब है कि क्लास कैन कॉल डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन एनी ऑब्जेक्ट. इससे पहले जब हमने एरर आपको बताया था प्रॉब्लम के अंदर, वो प्रॉब्लम में एरर क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम हमने सेल्फ भेजा था और हमने वहां पे कोई भी डेकोरेटर यूज नहीं किया था. तो इंटरप्रेटर क्या सोच रहा था, इंटरप्रेटर सोच रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस ऐड फंक्शन को आप कॉल करोगे. बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने उसको बताया कि नहीं भाई, इसको कॉल कौन करेगा, इसको करेगा कॉल क्लास. डायरेक्टली कॉल कर सकती है. क्यों कर सकती है, क्योंकि मैंने एट द रेट क्लास मेथड यहाँ पे दिया है, मैंने क्लास की फंक्शनैलिटीज को इनहेंस कर दिया है. ठीक है, तो वो देख लेगा इंटरप्रेटर की हाँ यार क्लास की फंक्शनैलिटी तो इनहेंस हो चुकी है, यानी क्लास कैन कॉल. तो क्लास ने क्या करा, डॉट ऐड करके कॉल कर दिया और फिर ये कोड हमारा रन हो गया. ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. क्लास की एक्सेसिबिलिटी जो है वो पहले कम थी,
एक्सेसिबिलिटी कैसे हो रही थी उसके थ्रू, ऑब्जेक्ट हो रही थी। लेकिन जब मैंने एक डेकोरेटर असाइन करा, तो यानी कि मैंने क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या ड्यूटीज को और बढ़ा दिया, या क्लास के एक्सेसिबिलिटीज को और बढ़ा दिया, जिसके बढ़ाने की वजह से वो बहुत इजीली उन फंक्शंस को रन कर पा रहा है जो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर करे हैं। और उन फंक्शंस को कैसे पता कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है? उन फंक्शंस को पता चला विद द पैरामीटर ऑफ सीएलएस। उनको सीएलएस के थ्रू पता चला कि यार मेरा बिहेवियर चेंज हो चुका है, मुझे क्लास भी कॉल कर सकती है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Yes, students kindly response. Meenakshi, Yash, Vaibhav, Vansh, is this clear? Yash is saying clear, Vansh is saying clear. What about Meenakshi? Okay, clear. Yeah, any doubt to anyone in this? Okay, okay, sir, students are saying clear, so we will proceed to the next one. ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट कीजिए। अब देखिए मैंने क्लास मेथड के ऊपर इसे डिजाइन करा है, देखते हैं कितने बच्चों को इसके बारे में अब राइट आंसर हमें दे पाते हैं। Sir, one student is having doubt. He said, अगर यहाँ पर हम इंटेंशनली ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल करें तो होगा? नहीं, एरर आ जाएगा। मैं उसको डिस्कस करता हूँ अभी इसके बाद। So, okay, Ujjwal, sir will be discussing again this concept. Please go through this question, try to solve it, then sir will coming back to your question, okay? And it is request to everyone, kindly ask the question in English. काइंडली रिस्पॉन्स, मैंने भी आपको डेकोरेटर्स के बारे में बताया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन डेकोरेटर्स के बारे में दिया आपको। I think students are taking some time, no response till now. Okay, hope we will be giving some more seconds for them, some more time for them, Okay, so fine, that they will fine. solve. Yeah. You can easily solve this problem if you understand the decorator definition as well as if you dry run it. Simple dry run and decorator definition. You will get the answer. The students start giving the response. Solve it completely. Try to understand. Yeah, Shreyansh is saying B. Faisal is saying B. Rekhar 400, okay, B. Vaibhav B. Vishal B. Okay, we got around 5 to 6 responses. 7. Everyone is saying B as answer. Okay, I am expecting new responses. Yeah, B. Sir, everyone is saying B. Okay. जिन्होंने भी बी आंसर दिया, यस, आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। देखो मोटिवेशन करना पड़ता है आपको आंसर देने के लिए, है ना? तो प्लीज ये अपनी हैबिट बनाओ, मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे इंटरव्यू के सामने बैठना है, ठीक है? आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो 60 सेकंड्स के अंदर वो आंसर आना चाहिए। और आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं गया, कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, और जो लोग कर रहे हैं वो आंसर दे भी रहे हैं, है ना? तो डेफिनेटली मैं मोटिवेट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास के अंदर, प्लीज ड्राई रन करो उसको, कोड को। नहीं हो रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। ITCS के लिए कोडिंग इज ब्रेड एंड बटर। अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तो आप क्या करोगे? तो आप लोग प्लीज जब कोड सामने आता है तो अटैक करा करो उस पर कि हाँ मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है ना? और उसके पीछे पढ़ा करो कि हाँ इसके पीछे रीजन क्या है। ओके, मैं इसका ड्राई रन करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले D1 इज इक्वल टू डेटा, एक ऑब्जेक्ट बना D1 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट D1 बना, D1 डॉट डेटा इक्वल टू 20। तो जब ऑब्जेक्ट बना तो मेरे इसका आपका कंस्ट्रक्टर फायर होगा, डेटा डॉट कॉन्स्टेंट में 20 वैल्यू असाइन हो गई है यहाँ पर इस पॉइंट पे, और सेल्फ डॉट डेटा में 0 है। D1 डॉट डेटा इक्वल टू 20, तो यानी कि D1 डॉट डेटा में आपने 20 वैल्यू असाइन करा यहाँ पे। फिर dt इज इक्वल टू डेटा, फिर दोबारा एक और बार फायर हुआ, डेटा डॉट कॉन्स्टेंट में 20, यानी D1 को एक मेमोरी एरिया मिला, एक ऑब्जेक्ट D1 बना, एक ऑब्जेक्ट D2 बना। D1 डॉट कॉन्स्टेंट में 20 है, इसके कॉन्स्टेंट में 20 है, इसके भी कॉन्स्टेंट में 20 है, डेटा पार्ट में 0 0 0
0। ठीक है, फिर हमने कैलसी 1 डॉट एड D2 D1, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लास मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ पर ये वैल्यूज गई इस जगह पे। ठीक है, तो क्या हुआ, ए डॉट डेटा में अभी करंट वैल्यू कितनी है, ए में क्या है, ए में आया है आपके पास D2 ऑब्जेक्ट और बी में आया आपके पास D1 ऑब्जेक्ट, है ना। तो D2 यानी कि ए डॉट डेटा का मतलब क्या, D2 डॉट ऑफ डेटा की बात चल रही है। D2 डॉट डेटा में कितना पार्ट है, D2 डॉट डेटा में 0 है और सिमिलरली D1 डॉट डेटा में भी 0 है। तो यानी कि CLS डॉट डेटा के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और रिटर्न CLS डॉट डेटा मतलब इसने इसको रिटर्न क्या कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे जो आउटकम आया वो 0 आया है। फिर मैं आगे बढ़ा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ पे कैलसी डॉट मल्टीप्लाई अप्लाई फायर हुआ, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास हम यहाँ आए, यहाँ पे हमने देखा CLS डॉट डेटा स्टार इक्वल्स टू डेटा डॉट कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा डॉट कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है उसको CLS डॉट डेटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो CLS डॉट डेटा इज इक्वल्स टू CLS डॉट डेटा मल्टीप्लाई डेटा डॉट कॉन्स्टेंट, तो ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आउटकम क्या आया, यहाँ पे आउटकम हमारे पास आया 400, यानी 20 इंटू 20 हमारे पास हुआ। डेटा डॉट कॉन्स्टेंट में क्या वैल्यू है, 20 है। फिर CLS डॉट डेटा यहाँ रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद यहाँ पे नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट फायर हो रहा है, कैलसी डॉट डेटा। तो कैलसी डॉट डेटा में जो न्यू वैल्यू उस क्लास के अंदर वो कितनी वैल्यू है, 400 है, और उस 400 को इसने प्रिंट करा। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 400। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को सर डाउट है तो पूछे। यस, एशी इज सेइंग दैट सर D2 में 20 कैसा है, D2 में 20 कैसा है? जब आपने ये ऑब्जेक्ट फायर किया था D1 डॉट डेटा, यहाँ पे इस जगह पे D1 डॉट डेटा, तो यहाँ पे D1 डॉट डेटा की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे जो D1 डॉट डेटा की वैल्यू है वो हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे जब ये स्टेप सेकंड रन हुआ था तो इनिशियली जब कंस्ट्रक्टर फायर हुआ D1 इज इक्वल टू डेटा, तब तो 20 0 था, लेकिन डेटा 1 डॉट डेटा जब फायर हुआ तो यहाँ पे ये अपडेट हुआ, यहाँ पे ये अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, 20 हो गई थी हमारे पास। और D2 इज इक्वल टू डेटा, ये कंस्ट्रक्टर फायर हुआ, फिर कैलसी डॉट एड फायर हुआ तो D2 कॉमा D1 गया। यहाँ पे तो A डॉट डेटा और B डॉट डेटा मतलब इंस्टांस डॉट डेटा और इंस्टांस डॉट डेटा की बात चल रही है, मतलब D1 डॉट डेटा D2 डॉट डेटा की बात चल रही है, दैट इज 0 प्लस 0। फिर हमने कैलसी डॉट मल्टीप्लाई फायर करा, तो जब हमने कैलसी डॉट मल्टीप्लाई फायर करा तो CLS डॉट डेटा इज इक्वल्स टू, ये क्लास का डेटा है, CLS डॉट डेटा मतलब क्लास का डेटा इज इक्वल्स टू क्लास का डेटा मल्टीप्लाई डेटा कांस्टेंट। तो क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्लास के डेटा में 20 है इंटू 20, दैट इज 400, और इसने वो 400 यहाँ पे रिटर्न करा है और उसको हमने प्रिंट किया। अब बताएं। हेलो, Yes, Ashi, is your query solved? Any doubt to anyone in this concept? Ashi is saying clear. Yes, any doubt to anyone in this concept? Why we got B answer as 400? Hope it is clear to everyone because maximum students has given B as an answer. Okay. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज सर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर देंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप डाल सकते हैं, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीजों को। Okay, right. So shall we proceed? Yes. If you do not have any queries, shall we proceed? ओके, वी प्रोसीड सर। Okay, sir. Yes. Yeah, kindly go through this question and try to solve it within the stipulated time. We got answers now within 30 seconds. Answer is A. Many students are typing A as an answer. Good. It's a very good response. I'm seeing new students also giving the response. Very good. गुड। Sir, maximum students are saying A as the answer. So we are getting answer A. They are saying A as the answer. okay, so good। जिन्होंने भी आंसर ए दिया है मेरे ख्याल से सबने ही आंसर ए दिया है शायद, है ना। Yes, Hello? sir. Maximum students. Yes, sir. All the students gave A as the answer. Yeah. 50. तो स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा भी डाउट है मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब अगर आप यहाँ पे देखें
यहाँ पे एट द रेट स्टैटिक मेथड लिखा हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेकोरेटर, जो कि इंटरप्रेटर को ये बता रहा है कि जो नेक्स्ट फंक्शन है वो उसका नेचर क्या है, स्टैटिक है। अगर नेचर स्टैटिक है सो यू डोंट नीड एनी सेल्फ CLS XYZ। आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे, आप सिंपल जैसे आप एक सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में आप एक फंक्शन लिखते हैं, आपको पता है कि आपको नम वन और नम टू पे ऑपरेशन करना है, तो आपने नम वन और नम टू ही यहाँ पे सेंड करा है। आपने कोई स्पेशल कीवर्ड CLS या सेल्फ टाइप नहीं करा, कोई कन्वेंशन इस तरीके की फॉलो नहीं करी है। इस डेकोरेटर से इंटरप्रेटर को पता चल गया कि जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, स्टैटिक काइंड ऑफ है, उसको किसी भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे उसने खाली नम वन और नम टू को ही कंसीडर करा। फिर आपने इसको कॉल कैसे किया, आपको पता है जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड कहीं भी यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल होता है या सिंगल फंक्शन होता है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। अब स्टैटिक का भी एज क्लास मेथड की तरह ही बिहेवियर होता है कि उसको कॉल करने के लिए आप क्लास नेम का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास नेम क्या है, अगर आप प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पे क्लास नेम क्या है, पाइथन है। तो पाइथन डॉट करके ही आप सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यानी कि क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम, और उसके अंदर आप उतने ही पैरामीटर दीजिए जितने पैरामीटर पे आपको ऑपरेशन करना है, अगर आप एट द रेट स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, जब आप प्रिंट लिख रहे हैं तो प्रिंट में पाइथन डॉट ओपी ब्रैकेट में 10 एंड 20। तो हुआ क्या इस कोड के अंदर, जैसे ही यहाँ पे 10 और 20 आया तो नम वन में हमारे पास असाइन कर दिया, नम वन में जो वैल्यू असाइन हुई, नम वन में वैल्यू असाइन हो गई 10, नम टू में वैल्यू असाइन हो गई 20। ऑपरेशन क्या है, नम टू माइनस नम वन, नम टू में 20, नम वन में 10, तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे इनका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम किससे, पाइथन डॉट नम से। पाइथन डॉट नम में वैल्यू क्या है, 5, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। इसका मतलब है रिटर्न में रिजल्ट में क्या है हमारे पास, 50, जो कि यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी आंसर ए दिया है वो इस तरीके से उन्होंने इसका ड्राई रन किया है कोड का। एनी डाउट टिल दिस स्टेप? Sir, there is a query. Shreyan Shukla, he's saying, if what if we remove the static decorator? एरर, सिंपली एरर। अगर आप स्टैटिक नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, क्लास के अंदर आप एक फंक्शन बना रहे हैं, तो वहां पे आपको एक और पैरामीटर देना पड़ेगा ना, सेल्फ, और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे आप। इससे पहले हम वही डिस्कस कर रहे थे, Yes, ठीक है, Shreyansh. तो वहां पे एरर आ जाएगा। Okay, there is one more question, sir. Shreyansh is saying, sir, it is not giving error. आपने पाइथन डॉट ओपी करके रन करा इसको, एट द रेट स्टैटिक मेथड हटा के। सो आफ्टर द लेक्चर मैं इसको एक बार आपके साथ रन करके देखूंगा, ठीक है ना। He's saying yes. Okay. And there is one more query. Okay, sir. He said okay. And there is one more student called Ujjwal. He's saying, what is the difference between class method sector and static object decorator except syntax? ओके, देखिए ये सब जो बिहाइंड है ये मेमोरी लोकेशन पे डिपेंड करता है। स्टैटिक मेथड को मेमोरी लोकेशन अलग तरीके से होती है, क्लास मेथड को मेमोरी लोकेशन अलग तरीके से है। उस मेमोरी लोकेशन के बेसिस पे ही इनके पैकेजेस अलग अलग जनरेट हो रहे हैं। और आपको मैंने जैसे बताया था कि जैसे डिक्ट जो है वो इंस्टांसेस कंटेन करता है, तो सिमिलरली डिक्ट जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि एक मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैटिक मेथड में अलग होता है और क्लास मेथड में अलग अलग होता है, जो मेमोरी लोकेशन है इन तीनों में। इवन आई कैन से जब आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, जब आप सेल्फ दे रहे थे, वहां पे मेमोरी मैनेजमेंट अलग होता है, क्लास मेथड में मेमोरी मैनेजमेंट अलग होता है, स्टैटिक मेथड में मेमोरी मैनेजमेंट अलग होता है। उसके बारे में आप डेप्थ में मेमोरी मैनेजमेंट अगर इसका पढ़ेंगे या डिस्कस करना चाहेंगे तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे पिंग कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका मेमोरी मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि मेमोरी लोकेशन कैसे हो रही है इनके अंदर, ठीक है ना। Yes, Ujjwal. Is this clear to you? सिंपली मेमोरी मैनेजमेंट Yes. डिफरेंस है तीनों में, ठीक है ना। बाकी अगर आपको मेरे से डिस्कस करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, Yeah. ठीक है। Ujjwal is saying yes. And any queries to anyone? Kindly respond through chat. Either say yes or no so that we can proceed further.
So if you do not give any response, we'll be waiting for your response, thinking that you have not अगर आपको understood or having अगर any आपको ये opinion. कॉन्सेप्ट क्लियर है Yeah, तो kindly respond yes or no. Is this clear? Yes, clear, clear, no doubt, clear. Yes, sir. अब Yeah, मैं ना proceed. नेक्स्ट प्रॉब्लम से आने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, ठीक है? वो चीजें क्या है, और वो दो तीन कीवर्ड्स हैं जो आप लोग को पता है, लेकिन मैं एक बार डिस्कस करूंगा ताकि आप, मैं मैक्सिमम आंसर चाहता हूँ स्लाइड्स में से, ठीक है ना? उससे पता चल जाएगी हमें कितनी बातें समझ आई। एक तो एट द रेट स्टैटिक मेथड, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे डेकोरेटर के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है ना? कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या बिहेवियर है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है? सेकेंड, एक कीवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड सुपर। सुपर कीवर्ड क्या करता है? सुपर कीवर्ड जब भी आप एनकाउंटर करेंगे किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो उसका मतलब है कि वो अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सुपर डॉट फंक्शन नेम, तो उसका मतलब है कि जिस क्लास से हम कॉल कर रहे हैं वो अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करवाना चाहता है, ठीक है? सुपर कीवर्ड, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इनहेरिटेंस। पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस कैसे करते हैं? पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस करने का तरीका क्या? अगर मैंने यहाँ पे एक क्लास ए लिख दिया और मैं एक क्लास बी लिख रहा हूं, तो ब्रैकेट में मैंने ए लिख दिया, तो नाउ दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, है ना? ये पता है आप लोग को? तो तीन, नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए हमें तीन बातें पता होनी चाहिए। पहला, एट द रेट स्टैटिक मेथड क्या कर रहा है? सेकेंड, व्हाट, हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स। थर्ड, सुपर कीवर्ड। अगर आपको ये तीन कीवर्ड पता है, क्लियर है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बताओ। Yes, students. Kindly और respond. नहीं पता तो मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा पहले, फिर हम उस प्रॉब्लम पे जाएंगे। सबसे पहला चीज, एट द रेट स्टैटिक मेथड क्या कर रहा है? सेकेंड, इनहेरिटेंस डिक्लेरेशन खाली, बहुत डेप्थ में इनहेरिटेंस नहीं चाहिए आपको, खाली डिक्लेरेशन। जैसे क्लास ए है, क्लास बी उससे इनहेरिटेड है, तो कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं? थर्ड, सुपर कीवर्ड क्या करता है? Yes, students, are you comfortable with this? Are you comfortable? Yeah, sir. Sir, please. Sir, बता दीजिएगा. Sir, please explain once. Do you need all the concepts, Vishal, Shubhika, or a specific concept? Explain all. ओके, Super static, super तो static. सबसे Sir, पहले सबसे पहले हम लोग इनहेरिटेंस पे आते हैं, ठीक है? इनहेरिटेंस होता क्या है? बेसिकली जो आप लोगों ने बिल्कुल अपने प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जावा में या पाइथन में पढ़ रखा है। इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ अ ड्राइव क्लास, यानी कि हम जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, तब हम उस चीज को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास होता है, उसके अंदर हम लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं? वो प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग एक्सेस करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। पाइथन में इनहेरिटेंस कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, जो उसका सिंटेक्स है, तो मैंने लिखा है क्लास ए दैट इज द पेरेंट क्लास, या मैं यही लिख देता हूँ। एक और बात लिखता हूँ आप लोग के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करा, क्लास पेरेंट डिक्लेयर कर दिया, और एक क्लास बना रहा हूं मैं यहाँ पे चाइल्ड, और अगर चाइल्ड इनहेरिट है पी से, तो ब्रैकेट में पी लिख देंगे, बस ऐसे। तो इस तरीके से हमने इनहेरिटेंस किया है। तो इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मुझे पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास दो ऐसे फंक्शन है जिनका नाम सेम है, जैसे इनिट, पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर इनिट है और चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर जो है वो कौन है? इनिट। क्योंकि आपको पता है पाइथन में कंस्ट्रक्टर को अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पेरेंट क्लास में भी उनके कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है। बट मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूं। मैं क्या चाहता हूं? चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूं। तो मैं क्या लिखूंगा? सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट में पैरामीटर्स, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा? सुपर के थ्रू मैं पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को, जो कि हमने ओवरराइड कर रहे हैं, उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट,
एट द रेट स्टैटिक मेथड अभी हमने देखा था, उसके अंदर हमें किसी सेल्फ सीएलएस की जरूरत नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। और उसका मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है, जो हम डिस्कस करेंगे कभी। यहां तक ये तीनों पॉइंट क्लियर है, तो चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Yes, students. Sir is going the overview of all these concepts. Clear? Shall we proceed? Yeah, kindly respond. Yes, yes, yes. Yeah, Anu, yes. Few more responses. I need few more responses so that I can, yeah. Okay, sir. So please proceed. You can Okay, so at next any problem. point of time, if you have any query, you can revert the question back. Okay. ओके, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं हम लोग कितने लोग उसका आंसर देते हैं। चलिए, Students, kindly go through this question. Use pen and paper to solve this question. you can easily solve this problem. Yes, students have started giving the responses, sir. A Good, as an good, answer. good. Hey, beta, hope you have understood this concept in the previous slide, which sir has explained you. So kindly respond. I am expecting more responses because there are 94 students, but every time I'm getting not more than 20. So I'm expecting 90, minimum 90% of the students need to be answered. Yeah, all are saying A, sir. Maximum responses are A. ओके, गुड। सो ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी इसका ड्राई रन करा है, कॉन्ग्रेट्स। आप लोग को ड्राई रन करना तो बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज वो करिए, ठीक है ना। ड्राई रन कीजिए, जब तक आप नहीं करेंगे ये काम आप लोग प्लीज इंटरव्यू नहीं निकाल पाएंगे। आप मेरी बात को समझ के चलिए, ठीक है ना। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोग को नहीं समझ आया है उनको। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास ये 3 लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। अब ये देखिए कहाँ से कॉल होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ जंप कर गया। इसके सेल्फ में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है सुपर डॉट इनिट। मैंने बताया था ना आपको कि जब आप सुपर डॉट किसी फंक्शन का नाम लेते हैं तो वो कॉल होता है। तो इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ये है, यानी कि यहाँ से ये यहाँ से पेरेंट क्लास की तरफ चला गया, मूव कर गया, ठीक है। यहाँ पे सुपर डॉट नम में क्या वैल्यू है, 100, तो सुपर डॉट नम में 100 वैल्यू है, ठीक है। फिर ये वापस आया यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, सेल्फ डॉट वेयर में आपके पास 200 वैल्यू असाइन की इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसके बाद यहाँ जंप कर गया, मतलब यहाँ पे असाइन करने के बाद वैल्यू इंटरप्रेटर यहाँ आया। यहाँ पे देखा हमने रनिंग टाइम में सेल्फ डॉट वेयर में कितनी वैल्यू हो गई है, 200 हो गई है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये हो गया कि सेल्फ डॉट नम में 100, सेल्फ डॉट वेयर में 200। फिर आगे आए हमारे, हमने कहा सन डॉट शो, मतलब सेकंड स्टेप रन हुआ। सन डॉट शो यानी यहाँ पे आए, सन डॉट शो यानी कि यहाँ से ये यहाँ जंप कर गया। जब ये यहाँ से यहाँ जंप करता है तो वहां पे दो चीजें प्रिंट हो रही है, वन इज प्रिंट सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट वेयर। सेल्फ डॉट नम में कितनी वैल्यू है जो हमने डिस्कस की थी, सेल्फ डॉट नम में वैल्यू आई हमारे पास 100, जो फर्स्ट स्टेप में आई थी। सेल्फ डॉट वेयर में कितनी वैल्यू है, सेल्फ डॉट वेयर में वी हैव द वैल्यू 200, तो इसलिए 100 और 200 पहले प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा पेरेंट डॉट शो। अब ये पेरेंट कौन है, पेरेंट इज अ क्लास नेम। अब क्लास नेम डॉट शो करोगे तो कौन फायर होगा, अब क्लास नेम डॉट शो फायर करोगे तो स्टैटिक मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट डॉट शो में स्टैटिक मेथड के अंदर वी हैव टू वैल्यू असाइन, वन इज num is equals to 4, other is var is equals to 5, or at the same time it prints these two values, print num that is 4, print var that is 5, and its execution is completed.
तो क्या प्रिंट हुआ हमारे पास अगर हम कंक्लूड करें, तो पहले हमारे पास 100 प्रिंट हुआ, फिर 200 प्रिंट हुआ, फिर स्टैटिक मेथड के अंदर 4 प्रिंट हुआ, और देन 5 प्रिंट हुआ। इसलिए जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछे। Yes, any queries to anyone, any doubt to anyone in this question? Hope this is clear because maximum students are given A as the answer, so they understood well. So there are no queries, sir. Everything is clear to everyone. So we'll proceed to the next one. No issue. Now I request all of you kindly fill your attendance. Take a 2 minute, fill your attendance. Yes, students, yeah, kindly respond. Yeah, good. You will be giving response only, I think, for the attendance, right? Yeah, please give the same response for the answers also. Sir, within 1 second, I think we got 30 to 40 responses for the attendance. It's very fast. Actually, right now they are student, na, they are actually not work for the employment. When they work for the employment, then they answer. मैं यही इनको encourage कर रहा हूँ कि अब ये प्लेसमेंट सीजन आने वाला है। प्लेसमेंट सीजन के लिए आपको फाइटर बनना पड़ेगा। फाइटर तभी बनोगे जब आप आंसर दोगे। आप आंसर नहीं दोगे, आप फाइटर नहीं हो। आप गलत भी दोगे तब भी आप फाइंडिंग करोगे मैंने गलत आंसर क्यों दिया, इसके पीछे क्या रीजन थे कि मैंने गलत आंसर दिया, है ना। लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ। Very quick responses for the attendance. Really, within 1 minute, I think we got all 90 responses Good, great. for the attendance. Sir, kindly you now stop recording and we will open their mic and take their doubts if they have. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. 1 second. Huh? I am stopping.